زمانہ قدیم کی بات ہے۔ ایک دور دراز علاقے میں زاہد نامی نوجوان اپنے والد ناصر کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان کا گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان پر تھا جہاں وہ دن بھر محنت کرتے۔ گھر میں صرف وہی دونوں تھے اور ان کا سہارا بھی ایک دوسرے کے سوا کوئی نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر میں بیٹھتے تو ناصر اکثر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹا موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار اللہ کے بھروسے پر چلایا کرو کیونکہ دکان محض ایک وسیلہ ہے، اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو اپنانا چاہے اس کی قیمت تمہیں اپنا سارا مال ہی کیوں نہ چکانی پڑے، اور بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا کیونکہ اللہ تمہیں اس وقت سہارا دے گا جب تمہیں کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ زاہد نے باپ کی باتیں سن کر پریشان ہو کر کہا، بابا، اللہ نہ کرے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ ناصر نے بیٹے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرا جانا یقینی ہے لیکن تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہوگا۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے وہی تمہارا نگہبان ہے، اور اگر اس پر یقین رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ باپ کی نصیحتیں سن کر زاہد کے دل میں ایک سوال اٹھنے لگا، اگر میں محنت کروں، ایمانداری اختیار کروں اور لوگوں کے ساتھ نرمی برتوں تو پھر اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب؟ آخر سب کچھ تو میرے ہی عمل سے ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اکثر اپنے باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن زاہد کو کیا معلوم تھا کہ اللہ اسے ایسا نظارہ دکھانے والا ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اب زاہد کی زندگی بھی اس پر ہنس رہی تھی، لہٰذا وقت گزرتا رہا اور پھر وہ دن آ گیا جس کا ناصر ہمیشہ ذکر کرتا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حقیقتاً زاہد کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب وہ دکان پر جاتا تو ہر چیز اسے باپ کی یاد دلاتی، گھر لوٹتا تو تنہائی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چار دیواری میں اب صرف وہی رہ گیا تھا اور اس کے دل میں باپ کی باتیں گونجتی رہتی جنہیں وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ باپ کے بغیر زندگی مشکل تو تھی مگر جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ زاہد نے خود کو کام میں مصروف رکھا مگر تنہائی کا احساس کبھی ختم نہ ہوا۔ کچھ وقت بعد اسے دکان کے لیے سامان لینے دوسرے شہر جانا پڑا جہاں سے کم قیمت پر مال خرید کر اچھا منافع کمایا جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ باپ کے بغیر اتنا دوڑ جا رہا تھا، مگر کاروبار کی مجبوری تھی اس لیے ہمت کرنی پڑی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، اس کی سوچوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ گھوڑے پر سوار امید کے سہارے وہ شہر کی طرف چل نکلا۔ راستہ طویل اور اجنبی تھا مگر وہ پر امید تھا کہ منزل پر پہنچ جائے گا، لیکن جوں جوں سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا اس کی امید بھی ڈگمگانے لگی۔ شام ڈھل گئی، اندھیرا پھیلنے لگا اور زاہد پر دکان سوار ہونے لگی۔ مشکل یہ تھی کہ جو کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لایا تھا وہ بھی خشک صحرا میں ختم ہو چکا تھا۔ اب پیاس اور بھوک نے جسم کو کمزور کر دیا تھا مگر اس سے بھی زیادہ خوف اور ڈر نے اسے گیر لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں گنے جنگل سے بھیانک آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی وحشی درندے گات لگائے بیٹھے ہوں۔ گھوڑا بھی بے چین ہو چکا تھا، قدم ڈگمگانے لگے تھے جیسے وہ بھی خطرے کو محسوس کر چکا ہو۔ زاہد نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر ہر طرف بے رحم تاریکی تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی، بس تھوڑی دیر اور شاید آگے کوئی محفوظ جگہ مل جائے، لیکن حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ خوفناک ہونے والی تھی۔ کچھ اور سفر کے بعد زاہد کی بھوک اور پیاس شدت اختیار کر گئی۔ اب وہ حیران اور پریشان تھا، سوچنے لگا کہ شاید میری موت یہی لکھی ہے۔ نہ جگہ ٹھیک تھی، نہ پانی اور کھانے کا کوئی ذریعہ تھا۔ بھوک تو کسی نہ کسی طرح برداشت ہو رہی تھی مگر پیاس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ گھوڑے کو تیز بھگانے لگا مگر کچھ دور جا کر گھوڑا رک گیا۔ اندھیرے میں سفر ممکن نہیں تھا۔ خوف اور تکن سے بے حال زاہد بھی زمین پر لیٹ گیا مگر شدید پیاس کے باعث نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیٹے لیٹے اسے اپنے باپ کی بات یاد آئی، بیٹا، اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں تمہیں کوئی نہ ملے۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں سے بے اختیار دعا نکلی، اے اللہ، اگر میرے والد کی بات سچ تھی تو اس بیابان میں میرے لیے پانی اور کھانے کا کوئی راستہ کھول دے۔ تو جانتا ہے میں کتنا بھوکا اور پیاسا ہوں۔ دعا کے بعد وہ وہیں لیٹ گیا۔
कुछ वक्त गुजरा था कि अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा हुआ और खौफजदा होकर दौड़ने लगा। जाहिद ने जब ये देखा तो गुस्से से कहने लगा, अब ये क्या मुसीबत है। घोड़ा अगर भाग जाता तो वो बिल्कुल अकेला रह जाता, इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया। कुछ दौड़ दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और जाहिद ने फौरन लपक कर उसे काबू कर लिया। लेकिन अब एक और मुसीबत आन खड़ी हुई थी। अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद कदम ही चला होगा कि दौर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक महसूस हुई। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहाँ जाकर रात गुजारता हूँ। पुराने वक्तों में मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके सोने और खाने का बेहतरीन इंतजाम होता था। वो रोशनी के पीछे चलने लगा। करीब पहुंचा तो हैरत से रख गया। ये तो एक पूरी बस्ती थी। बेशुमार घर आबाद थे। दिल को सुकून मिला कि किसी न किसी घर में जरूर पनाह मिल जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। हैरान होकर दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। ये देखकर जाहिद को सख्त तजब हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि पूरे गांव के घर सुनसान और खाली हो। दिल में खौफ सा बैठने लगा, लेकिन हिम्मत करके वो रोशनी की समत बढ़ा। वो रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? रात के उस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिद ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूँ, दिमश्क से आया हूँ। रास्ता भटक गया हूँ और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूँ। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। जाहिद ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से रुक गया। सामने एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा था, जिसके दोनों पांव नहीं थे। जाहिद भी पास बैठ गया। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जाहिद ने सारी कहानी बयान कर दी और अब वो इस अजीब बस्ती और माजूर शख्स के बारे में सोच रहा था। फिर जाहिद ने बेकरारी से कहा, भाई साहब, मुझे शिद्दत से प्यास लगी है, मेहरबानी करें, मुझे पानी दीजिए, भूख से भी नढाल हूँ। माजूर आदमी ने सुकून से जवाब दिया, भाई पानी तो यहाँ नहीं है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। जहाँ सहरा में दौर रोशनी दिखाई दे रही है वहीं से पानी मिलेगा और खाने का उसका इंतजाम तो खुदा ही करेगा। ये सुनकर जाहिद को अजीब सा लगा, मगर प्यास और भूख से मजबूर होकर वो रवाना हो गया। बोझल कदमों के साथ वो रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी झोंपड़ी है और अंदर से कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा है, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। ये देखकर जाहिद के दिल में खौफ पैदा हुआ और कहने लगा, अब ये कौन सी मखलूक है? हिम्मत करके उसने झोंपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से आवाज आई, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। जाहिद हैरान रह गया, मगर फौरन बोला, हाँ हाँ, मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, फिर अंदर आ जाओ। उसने सारी हिम्मत एक करके डरते डरते अंदर दाखिल हुआ और जब देखा तो सुकून की सांस ली। सामने एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहा था। कम इज कम ये कोई जिन या आसीब नहीं था, इतना तो उसे यकीन हुआ। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाए तभी वो रास्ते भटकने लगता है। फिर इशारा करके कहा, वहां पानी का मुटका रखा है, उठाओ और चलो। जाहिद ने मुटका उठाया और चल पड़ा, मगर बुजुर्ग की बातें उसके दिल में गंजने लगे। ये शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर भरोसा कमजोर है? इस सोच ने उसे बेचैन कर दिया, मगर वो खामोशी से वापस चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि यहीं पानी पी लूं ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए, मगर फिर एक ख्याल आया, माजूर आदमी भी तो प्यासा होगा, थोड़ा ही फासला रह गया है, वहां जाकर दोनों पी लेंगे। ये सोचकर वो तेज कदमों से चलने लगा, मगर जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया। तवाज़ुन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही मुटका भी टूट गया और सारा पानी बह गया। ये देखकर जाहिद को शदीद गुस्सा आया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। दिल ही दिल में खुद को कोसता हुआ अंदर गया। माजूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला? जाहिद ने झंझलाकर जवाब दिया, नहीं, मुझसे मटका गिर गया। फिर कड़े हुए लहजे में बोला, भाई, अब मुझ में मजीद बातों की ताकत नहीं। अगर पानी हो तो बस इतना दे दो कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। माजूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, अगर वाकई ये शख्स भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद कर, ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। जाहिद को गुस्सा आया, मगर खामोश रहा और मन में कहने लगा, अब ये कम अकल देखो,
ये कैसे मुमकिन है कि कोई इस सुनसान जगह हमारी मदद को आए। चंद लम्हे बाद दरवाजा खटखटाया गया। जाहिद चौंका, ये कौन हो सकता है? माजूर शख्स मुस्कुराकर बोला, जो भी है तेरे लिए पानी और खाने का बंदोबस्त लेकर आया होगा। ये सुनकर जाहिद हैरत में पड़ गया। ये आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसने दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग शख्स खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे एक मुटका भी नहीं संभाला गया। ये लो पानी और खाना, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है। तुम्हें खुद की पड़ी हुई है, जानवर का भी तो ख्याल रखा करो। जाहिद हैरान रह गया। ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सब जानते हो, मगर भूख और प्यास ने शख्स को सोचने का मौके न दिया। जल्दी से पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब सीर हो गया तो सवालात ज़हन में उभरने लगे। वो माजूर शख्स के करीब गया और बोला, भाई साहब, एक बात पूछनी है। अगर बरा न माने, माजूर शख्स ने नरमी से कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दो, बहुत प्यास लगी है। जाहिद ने जल्दी से पानी दिया और खुद भी थकावट से जमीन पर लेट गया, ये सोचते हुए कि ये कौन लोग हैं जो इतनी अजीब बातें करते हैं। जाहिद नींद की शिद्दत से सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा कि माजूर आदमी नमाज में मशगूल था। वो खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो वो फिर से बोल पड़ा, भाई साहब, अब तो मेरे सवालों के जवाब दे दें। माजूर आदमी मुस्कुराकर बोला, तुम भी अजीब हो। अल्लाह ने नई जिंदगी दी, खाने पीने का बंदोबस्त किया, मगर तुमने ना रात की नमाज पढ़ी और न सुबह की। ये सुनकर जाहिद शर्मिंदा हुआ। फौरन वजू करके नमाज पढ़ी, फिर घोड़े पर सामान रखा और चलने लगा। माजूर शख्स ने आवाज दी, पूछ लो जो पूछना है। जाहिद ने हैरानी से कहा, ये बस्ती खाली क्यों है? माजूर बोला, यहाँ बारिश में पानी भर जाता है, लोग आर्जी तौर पर ऊपरी इलाके में चले जाते हैं, तो फिर तुम क्यों रखे हो? जाहिद ने पूछा। माजूर शख्स ने कहा, मैं जा भी नहीं सकता और इबादत के लिए ये जगह छोड़ना नहीं चाहता। फिर जाहिद ने कहा, और वो बुजुर्ग कौन है? अल्लाह का एक नेक बंदा, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। जाहिद ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि खाना आ ही जाएगा? माजूर हंसा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे? तुम्हारी तो पहली रात थी। मैं 17 साल से यहाँ हूँ और हर वक्त अल्लाह इंतज़ाम कर देता है। एक भी दिन अल्लाह ने मुझे भूखी नहीं रखा। सिर्फ कल रात को तुम्हारी वजह से मुझे खाना देर से मिला। फिर वो बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर गया। ये मुसीबत नहीं, रहमत थी। जहाँ तुमने रात गुजारनी थी वहाँ से कोई जिंदा नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें बचाया। वो रास्ते बनाने वाला है, चाहे सहरा हो या कोई और जगह। रास्ते में उसे बाप की बातें याद आएं जो कहता था, अल्लाह ही मुश्किलें देखता और हल करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अल्लाह वही मिलता है जहां उसे कोई न मिले। इस वाक़ये के बाद जाहिद का यकीन मज़ीद पख्ता हो गया और वो हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच महदूद है, मगर अल्लाह के फ़ैसले बेऐब और हिकमत भरे होते हैं। हर आजमाइश या तो हमारे गुनाहों का कुफारा होती है, या इम्तहान, या फिर हुदायत का जरिया। लिहाजा इस पर सब्र करो, अल्लाह सुनने और देखने वाला है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके ताआवुन का शुक्रिया।